Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, our chapter name is Solids, Liquids and Gases, right? We have completed 3 sessions of this chapter. Now today is session number 4. In today's session, I am going to explain you all the things about uses of matter. कितने कितने uses होते हैं matter के, वो हम इसी chapter में आज पढ़ेंगे, right? But before I start explaining today's session, I just want you to revise all the things about all the last sessions. In our last session, what we have done? We have done different forms of materials, change of form, and in session 1 I explained you vocabulary words and meanings also, right? So let's revise that, okay? सबसे पहले vocabulary words. I am only going to pronunciate vocabulary words in this session, okay? Because हम सारे के सारे sessions में सारे के सारे vocabulary words already बोल रहे हैं, so you need to clear your pronunciation, okay? So let's do it. Number 1, materials. Number 2, definite. Number 3, mixture. Number 4, evaporation. Number 5, condensation. Number 6, freezing. Number 7, vapor. Number 8, matter. Number 9, container. Number 10, melting. Number 11, solid. Number 12, liquid. Number 13, gases. Number 14, flow. And last one, number 15, droplets. Here we completed our vocabulary words. Now let's revise meanings. Number 1, definite. Fixed and unlikely to change. कोई भी चीज़ फिक्स हो और उसको चेंज नहीं करना होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? definite. Number 2, vapor. Very small drops of liquid in the air, for example steam. Air में जो steam present होती है, that is called vapor. Number 3, freeze. To turn something liquid into solid. Freeze मतलब कोई भी चीज़ को liquid में से हमें उसको solid में convert करना है, तो हम उसको क्या करेंगे? freezing करेंगे, right? Kids, हम liquid मतलब पानी को जब ice cubes में convert करना आता है, what we are going to do? We are converting them, right? But with the help of freezing. So this is the method to convert liquid into solid. We have to use which method? Freezing method, right? Number 4, melt. To turn something solid into liquid. कोई भी solid चीज़ को liquid चीज़ में convert करना है, मतलब उसको melt करना है. हमें ice को melt करना है, उसको water form में again चाहिए. And what we are going to use? Which method we are going to use? Melt, right? Melting method we are going to use. Now number 5, condense. The way of changing from gas to a liquid. कोई भी way of change, कोई भी चीज़ gaseous form में से liquid state में हमें उसको करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? Condensation. हम लोगों ने ये session में पढ़ा ना condensation की process भी, right? So kids, here we completed our meanings also. Now let's move to different forms of materials. Different forms materials कौन से है kids? How many forms are there? Even I asked you in your worksheets also. Which are they? How many are there? 3, right? Which are they? Solid, liquid and gases. Once again, solid, liquid and gases, right? So these are the different forms of materials. Solids have a definite shape. Solids के पास अपनी definite shape होती है. Liquid have a no their definite shape, yeah? Liquid के पास अपनी definite shape होती नहीं है. Gases do not have shape of their own. Gases के पास भी अपनी खुद की shape होती नहीं है.
They do not change shape even when they are moved to another container. सॉलिड का ऐसा है कि उसको एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में अगर आप डाल रहे हो तो वो फिर भी अपना शेप चेंज करेगा नहीं. लिक्विड का क्या है? दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्रेजेंट. हम लिक्विड को कोई भी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसका शेप ले लेता है. फिर गैसेस का, दे फिल अप ऑल द अवेलेबल स्पेस इन द एम्प्टी कंटेनर. कोई भी खाली जगह होती है, एयर तो अपने आप फिल हो जाती है, राइट. सो नाउ सॉलिड्स डू नॉट फ्लो. सॉलिड्स फ्लो होते हैं? नहीं होते हैं. लिक्विड्स फ्लो इजीली. यस, लिक्विड इजीली फ्लो होते हैं. गैसेस फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी इजीली. मतलब गैसेस भी एक जगह से दूसरी प्लेस पर इजीली फ्लो होते हैं. एग्जाम्पल सॉलिड्स के, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, इरेजर, एवरीथिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स. फिर लिक्विड्स के, वाटर, मिल्क, पेट्रोल, diesel, even our saliva also is the example of liquid. Then juice, everything are the examples of liquids. Now gases. Most gases cannot be seen. ऐसे gases होते हैं, most of ऐसे gases होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, जो हमें visible होते नहीं है, but फिर भी air में वो present तो होते हैं, right? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर है वो हमारे गैसेस का मिक्सचर है, राइट. एयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये नहीं होता है. एयर में देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट, लाइक एयरगॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैनी मोर. ओके, नाउ एग्जांपल्स ऑफ गैसेस: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन nitrogen, argon, right? So these are the examples of gases. Now kids, another topic, our change of form. हमें फॉर्म्स चेंज किए थे, राइट. लास्ट सेशन में पढ़ा था ना कैसे कैसे फॉर्म चेंजेस किए. जैसे लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, गैस को लिक्विड में चेंज किया, अगेन लिक्विड को गैस से चेंज किया, राइट. इतने हम फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं ना. सो वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. वाटर कितने फॉर्म्स में होता है? 3 फॉर्म्स में. अगेन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट. वाटर दैट वी ड्रिंक इन इट्स लिक्विड फॉर्म, हम जो पानी पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म होता है, राइट. इन इट्स सॉलिड फॉर्म वाटर इज कोलाइज. जब हम उसको सॉलिड फॉर्म में कर देते हैं पानी को, तो उसके सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? आइस, राइट. एज अ गैस इट इज कॉल्ड स्टीम और वाटर वेपर. पानी को गैसियस फॉर्म में होता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वाटर वेपर या तो फिर स्टीम, राइट. वाटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग. हम वाटर को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो 2 मेथड से. या तो फिर हम उसको हीट कर सकते हैं या तो फिर हम उसको कूल कर सकते हैं, राइट. यही 2 फॉर्म में से हम उसको फॉर्म को चेंज कर सकते हैं. लेट अस लुक एट द चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर. तो पहले वाली कौन सी मेथड है? लिक्विड टू सॉलिड. पानी को आइस क्यूब में कैसे करोगे कन्वर्ट? फ्रीजिंग से, राइट. सो इजी. फिर सॉलिड टू लिक्विड. सॉलिड है, आइस सॉलिड है, उसको अगेन लिक्विड में हमें करना है, तो हम क्या करेंगे उसको? विद द हेल्प ऑफ विच मेथड? मेल्टिंग, राइट. हमें उसको मेल्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली, राइट. मेल्टिंग करना पड़ेगा तो वो इजीली आइस क्यूब में से वो पानी में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा. फिर गैस टू लिक्विड. गैस टू लिक्विड मैंने आपको एग्जांपल दिया था किड्स. आपके लंच बॉक्स में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में से अगेन लिक्विड में आ गए ना, राइट. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन. व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट? दैट प्रोसेस? कंडेंसेशन, राइट.
नाउ अगेन लिक्विड टू गैसियस, हमें लिक्विड को गर्म करके उसको गैसियस फॉर्म में चेंज करना है, तो हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करेंगे? इवापोरेशन। कौन सी प्रोसेस का? इवापोरेशन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड किड्स, चेंज ऑफ फॉर्म, राइट? So here we completed revision of all the 3 sessions, right? So now let's begin today's session. In today's session I am going to explain you about uses of matter. मैं यहाँ पे आपको uses of matter पढ़ाऊँगी। Solids have a fixed shape. Solid के पास अपनी खुद की fixed shape होती है। Table, chair and many other things around us are solid. जैसे मैंने सेशन 1 में बोला था ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है वही हमें लिखने हैं। नो, यू हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स टू राइट ऑफ सॉलिड, राइट? आप कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो सॉलिड के। यहाँ पे टेबल बोला है, चेयर बोला है, ये बोर्ड है, कोई भी स्टिक है, सोफा, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स, राइट? हमारे आजू बाजू में मोस्टली सारी की सारी सॉलिड चीज़ें होती है, राइट? भाई आप कहाँ पे बैठे हो? बेड पे बैठे होंगे, चेयर्स पे बैठे होंगे, कोई सोफे पे बैठा होगा, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे सामने बेंचेस है, तो ये सारी की सारी चीज़ें सॉलिड्स होती है, राइट? वी कैन मूव देम अराउंड एंड यूज देम फॉर वेरियस पर्पसेस। यूजेस ऑफ मैटर मतलब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं वो हमें लिखना है, राइट? तो अभी सॉलिड का जैसे मैंने बोला, हमारे आजू बाजू में बहुत सारी सॉलिड चीज़ें होती है, राइट? हम क्या कर सकते हैं? उसको शिफ्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके हम उसका यूज़ इजीली कर सकते हैं। हम पिकनिक पे जाते हैं, राइट? तो हम अभी वो पोर्टेबल टेबल्स निकले कि हम उसको इजीली पैक भी कर सकते हैं और इजीली हम कार या व्हीकल में भी रख सकते हैं, राइट? तो हम उसका मल्टीपल यूजेस हो गया, राइट? फिर हमें कुछ भी पुरानी चीज़ें परचेज करनी है या तो फिर ऐसा कोई भी चीज़ है जो सॉलिड का मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बॉल है, जो बॉल है, बॉल को हम ले जा सकते हैं, राइट? खेल सकते हैं। तो वो क्या हुआ कि हमने यूज़ किया। फिर टेबल है, टेबल को भी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करके हम उसका मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मल्टीपल यूज़ करते हैं। इवन किड्स, व्हीकल्स है ना, व्हीकल्स, आपके पास कौन सी व्हीकल है? एक्टिवा है, बाइक है, कार है ना? ये सारी की सारी चीज़ें जो आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? करते ना। सो दीज आर ऑल सॉलिड्स, राइट? तो आपने उसका भी यूज़ किया। हम इवन हमारे सिटी में ही भी घुमाते हैं, हम सिटी के बाहर भी लेके जाते हैं, राइट? तो हम सॉलिड चीज़ों का डिफरेंट वे में मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। किड्स, सपोज हम हाउस को शिफ्ट कर रहे हैं, राइट? हमने नया परचेज किया, हमारे घर में रिनोवेशन चल रहा है, तो हम दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं या तो फिर रेंट वाले हाउस में हम जा रहे हैं, तो सारा का सारा सामान हम शिफ्ट करते हैं, राइट? कोई भी थिंग्स होती है, सारी की सारी वी आर शिफ्टिंग। तो हमने ऐसा तो नहीं है ना कि एक घर में यूज़ कर लिया तो हम दूसरे घर में नहीं यूज़ कर सकते, नहीं, ऐसा तो होता नहीं। ऐसा भी होता है, बट कैसा होता है, जो पुरानी चीज़ हो गई है, जो थिंग्स है वो टूट चुकी है, तो ऐसे चीज़ को वी कैन नॉट यूज़, राइट? बट बाकी 99.99% थिंग्स वी कैन यूज़ इट, राइट? सो क्लियर किड्स, वी कैन मूव देम अराउंड एंड यूज़ देम फॉर वेरियस पर्पसेस। इवन किड्स, हमारा बैग है, बैग में मोस्ट ऑफ सॉलिड ही चीज़ होते हैं एक्सेप्ट बॉटल, राइट? बॉटल के अंदर वाटर होता है, तो बाकी बॉटल भी सॉलिड ही है। तो हम बैग को स्कूल पे लेके आते हैं, फिर स्कूल से घर पे लेके जाते हैं, घर से स्कूल पे आते हैं, तो उसका मल्टीपल पर्पस हो गया, राइट? तो हम ऐसे सारी सॉलिड चीज़ों का ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ liquids do not have a fixed shape. As we all know, liquids के पास अपनी fixed shape होती नहीं है।
We use a cup or containers of different shape to hold or move them. अगर हमें लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, हमें उसको कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सपोज किचन में से मम्मी हमें कोई भी टी, कॉफ़ी, जूस, मिल्क देने के लिए आ रही है, तो क्या मॉम को क्या नीड होगी, एक कप की, राइट, जिसमें लिक्विड अपने आप को होल्ड करे। क्लियर किड्स। तो लिक्विड्स के पास एक तो अपनी फिक्स्ड शेप होती नहीं है, और लिक्विड जो भी कंटेनर में हम लिक्विड को डालेंगे, लिक्विड उसकी शेप इजीली ले लेता है। जैसे कि वाटर, जूस हम बॉटल में डालते हैं तो वो बॉटल का शेप आ जाता है, राइट। फिर कोई भी चीज़ को हम कोई भी बॉल में डालते हैं तो बॉल का शेप आ जाता है, कोई भी यूटेंसिल में डालते हैं तो उसका शेप आ जाता है, राइट। तो लिक्विड्स हैव ए नो फिक्स्ड शेप। जूस, milk, water and petrol are examples of liquids. As I said कि there are so many examples of liquids are there, right? Here are the few examples are already given in your book. यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल ऑलरेडी आपकी बुक्स में दिए गए हैं। यू कैन ऐड अदर्स ऑल्सो, राइट। आपके दिमाग में तो बहुत सारे होंगे, दीदी ये, दीदी ये, दीदी ये है ना। तो कोई बात नहीं, आपको वर्कशीट्स में मैंने पूछा ही होगा, राइट डाउन एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स, राइट डाउन एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स एंड राइट डाउन एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस। यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल्स ओवर देयर, ओके, बट वैलिड होने चाहिए। अगर वैलिड नहीं होंगे तो मैं रॉन्ग कर दूंगी, ओके। नाउ नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक शेप। उसके पास अपनी स्पेसिफिक शेप होती नहीं है, वो तो कोई भी डायरेक्शन में फ्लो होती है, किसी भी शेप में आ जाती है, राइट। दैट्स व्हाई इट हैव अ नो स्पेसिफिक शेप। So it is easy for us to pour it from one container to another container. उसके पास अपनी खुद की शेप नहीं है, that's why हमारा काम easy हो जाता है। हम उसको एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में इजीली उसको पोर कर सकते हैं। मतलब एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में हम उसको इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, राइट किड्स। कोई भी सॉलिड चीज़ हो, सॉलिड चीज़ तो हम उसका शेप में ध्यान रखते हुए हम उसको शिफ्ट करेंगे, राइट। सपोज टेबल है, टेबल बड़ी वाली टेबल, हाँ, तो वो एक फिक्स्ड शेप की होती है, हम उसको शिफ्ट कर सकते नहीं। अगर हमें उसको फिर भी शिफ्ट करना है तो हम कार का यूज़ करेंगे, या तो फिर मिनी ट्रक है तो वो इजीली अच्छी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। बट ऐसा तो नहीं है ना। पानी का तो क्या है कि हम उसको बॉटल में भी डाल सकते हैं, जार में भी डाल सकते हैं, कप में भी डाल सकते हैं, बॉल में भी डाल सकते हैं। उसका ऐसा कोई भी फिक्स होता नहीं, हम उसको इजीली कोई भी कंटेनर में डाल सकते हैं। सॉरी, वाटर बीइंग लिक्विड कैन ट्रैवल थ्रू पाइप्स। इवन वाटर पाइप्स के थ्रू भी ट्रैवल करती है किड्स। हमें जो घर पे पानी आता है वो गवर्नमेंट का पानी होता है, राइट, म्यूनिसिपैलिटी से आता है हमें पानी। तो वो आपको पता है किड्स अंदर कितनी सारी पाइपलाइंस होती है, छोटी बड़ी बहुत सारी पाइपलाइंस होती है। सोचो डैम में से पानी हमारे घर तक आ रहा है, और वो भी पाइपलाइंस तो कहीं भी दिखती भी नहीं है, बिकॉज वो सारी की सारी अंडरग्राउंड होती है। क्या होती है? अंडरग्राउंड होती है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पता है ना आपको कि पाइपलाइन, पानी पाइपलाइन से भी आता है। हमारे घर में टंकी होती है ना, टंकी, टैंक, वो ऊपर होता है पानी, तो हमारे बाथरूम में भी आता है, हमारी बेसिन में भी आता है, हमारे बाहर के आउटर स्पेस में भी आता है जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने टैप फिक्स करवाया है वहाँ पे पानी आ रहा है ऊपर से, बिकॉज पाइपलाइन से भी इजीली पानी फ्लो हो सकता है, उसके शेप में भी पानी इजीली आ सकता है, राइट। लिक्विड्स कैन बी पम्प्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिक्विड्स को
पंप करके भी एक जगह से दूसरी जगह पे हम इजीली पहुंचा सकते हैं। क्लियर किड्स? नाउ गैसेस। गैसेस डू नॉट हैव शेप। गैसेस के पास अपनी खुद की शेप होती नहीं है। इट स्प्रेड्स आउट एंड ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस। वो अपने आप ही स्प्रेड हो जाता है और सारी की सारी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट? जैसे कि मैंने बोला, आप अपने रूम में हो तो वो रूम के शेप में इजीली एयर अपने आप ही फील हो जाएगी। अगर आप विंडो खोलोगे तो विंड अच्छी तरह से आ रही है तो अंदर की एयर बाहर चली जाएगी और फ्रेश एयर अंदर आ जाएगी, अपने आप ही फील हो जाएगी और स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। क्लियर किड्स? A large quantity of gas can also be pressed and stored in smaller container. मतलब गैस में ऐसा भी होता है कि बहुत सारी क्वांटिटी का गैस होता है, हम उसको प्रेस करके छोटे कंटेनर में बहुत सारे गैस को भी फिल कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बॉटल्स ये सारी की सारी होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ये सब कुछ होता है ना, उसको प्रेस करके हम छोटी बॉटल में बहुत सारा गैस भर सकते हैं। उसकी एक प्रोसेस होती है, वो जो आपको आगे के स्टैंडर्ड में आएगा। अभी तो सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत सारा गैस हो, हम उसको छोटे से कंटेनर में हम उसको फिल कर सकते हैं, उसको प्रेस करके। राइट किड्स? We use air to fill up tires and balloons. हम एयर को क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? हम बलून्स के अंदर भी एयर फिल करते हैं, टायर्स के अंदर भी एयर फिल करते हैं, इवन वो जो बॉल होते हैं, राइट, जिसके अंदर हम एयर फिल करते हैं, होते हैं ना बॉल्स, ऐसे भी होते हैं, राइट? So these are the things which we use to fill gases, right? हम ऐसे भी चीज़ें हैं जिसको हम गैसेस की तरह एयर को फिल करने के लिए भी यूज़ करते हैं। I hope so kids you understand uses of matter. These are the uses of matter. Matter कौन कौन से है? Solids, liquids and gases. सॉलिड्स के भी यूजेस मैंने आपको बोले हैं। इवन हमारे किचन में भी बहुत सारे सॉलिड आइटम्स है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, नाइफ, सीजर, और हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? आपकी बैग में कंपास बॉक्स है, वो आप घर को भी यूज़ करते हैं, स्कूल पे भी यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर गोइंग एट ट्यूशन देन यू आर यूजिंग ओवर देयर ऑल्सो, राइट? सो दीज आर द थिंग्स वी आर यूजिंग कॉन्स्टेंटली, राइट? तो ये सॉलिड के यूजेस थे। लिक्विड के भी यूजेस है। हम व्हीकल में पेट्रोल डालते हैं तो वो भी मल्टीपल, वो व्हीकल तो कहीं पे भी जाता है, ऑफिस भी जाता है, स्कूल भी जाता है, घर भी जाता है, कहीं पे बाहर घूमने भी जाता है, राइट? तो वो उसका मल्टीपल पर यूज़ हुआ। फिर पानी की बॉटल है, हम स्कूल पे भी लाते हैं, ट्यूशन पे भी लाते हैं, घर पे भी रखते हैं, तो उसका भी यूज़ हुआ है ना किड्स। गैसेस है जो वो हम कहीं पे भी जाए वो तो डेफिनेटली होने वाला है, हमें उसको साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कोई भी पेशेंट हो जिसको सांस नहीं आ रही है तो ऑक्सीजन, आप लोगों ने टीवी मूवीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में, कि वो जो लगा के आपको टोटली जिसको ब्रीदिंग नहीं आती है उसको ऑक्सीजन देते हैं, राइट? तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए गैसेस भी यूज़ होते हैं। आपकी बॉल में से एयर निकल गई है तो हम उसको रीफिल कर सकते हैं। किसी की बर्थडे पार्टी है तो उसमें बलून्स में एयर फिल करके हम उसको यूज़ करते हैं, राइट? सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर यूजिंग, राइट? सो दीज आर द यूजेस ऑफ मैटर. आई होप सो यू अंडरस्टैंड किड्स. Once again I am reading all these things, right? Listen it carefully. Solids have a definite shape. Table, chair and many other things around us are the solid. We can move them around and use them for various purposes. Liquids do not have a fixed shape. We use a cup of containers of different shape to hold or move them. Juice, milk, water and petrol are examples of liquids. They do not have a specific shape.
So it is easy for us to pour it from one container to another container. Water being liquid can travel through pipes. Liquids can be pumped from one place to another. Gases do not have shape. It spreads out and occupies a lot of space. A large quantity of gas can also be pressed and stored in smaller containers. We use to fill up tires and balloons. So kids, I hope so you understand these things. आपकी वर्कशीट में कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे? फटाफट से मैं एक बार आपके सामने रीड करूँगी. ओके. Solids have a fixed blank. सॉलिड्स के पास अपनी फिक्स्ड क्या है? शेप है, राइट. ब्लैंक डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप. किसके पास अपनी खुद की शेप नहीं है? लिक्विड्स. कोई बोलेगा दीदी गैसेस में भी, पर गैसेस वाला क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक डू नॉट हैव शेप. किसके पास अपनी शेप ही नहीं होती है, तो उसमें क्या आएगा? गैसेस. नाउ वी यूज ब्लैंक टू फिल अप बलून्स. हम बलून्स को फिल करने में क्या यूज करते हैं? एयर, राइट. राइट डाउन 3 एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स. राइट डाउन 3 एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स. राइट डाउन 3 एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस. वो तीनों के 3 एग्जाम्पल्स आपको अपने आप लिखने हैं. उसमें कोई भी हिंट नहीं दूंगी, बिकॉज वो बहुत ही ईजी है. सेकेंड ग्रेड से आप लोग ये सब कुछ कर रहे हो. ओके. सो किड्स, इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू all textbook exercise. Here we completed our whole chapter number 5, solids, liquids and gases. In next session I am going to explain you matches, true or false, choose the correct answer, answer the following questions in 1 or 2 sentences and answer in brief. So till next session kids, bye.